Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back with the second lecture on the topic biological classification. So in the first lecture of the biological classification, we saw all the types of two kingdom system, three kingdom system, four kingdom system. Finally, we landed up with the five kingdom system of R.H. Whittaker. In that also we have seen what were the criteria, what he took into consideration for classifying these basic five kingdoms. So of that we'll be starting today with the first one, that is the kingdom Monera. So kingdom Monera. So first of all we'll see what are the characteristics of the organisms of the kingdom Monera. Okay, what are the characteristic features of the members of kingdom Monera? So first of all, these are exclusively, मतलब इसमें सोल मेंबर्स अगर हम देखें तो इसमें एक्सक्लूसिवली बैक्टीरियाज आते हैं. सोल मेंबर्स इनमें एक ही है, बैक्टीरियाज, ठीक है, विच आर ओमनी प्रेजेंट. एज वी ऑल नो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एक्सट्रीम कंडीशंस, like even in cold snow areas, hot water springs, everywhere, even in us also, in organisms also, in living organisms, they act like parasites. Some are independent also, some live in soil, so they are technically omnipresent. ठीक है. Next important feature is all of these bacteria are prokaryotic unicellular organisms. They are prokaryotic. This is the only kingdom which have organisms which are prokaryotic by nature. Kingdom Monera is the only kingdom which has prokaryotic cell वाले organism, and all of them are generally unicellular. So ये उसका second feature. अब सिर्फ ये एक word से हम और दो तीन features निकाल सकते हैं. Simply मतलब इसमें क्या, nucleoid is present. Nucleoid is present means what? Nucleus like. True nucleus नहीं होता. The genetic material is not enclosed. Genetic material not enclosed in membrane. सादी भाषा में nuclear membrane नहीं होता, इसलिए तो हम इसे प्रोकैरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस की खूबी क्या होती है कि वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है. देयर इज नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो नहीं होती, इसलिए हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस लाइक. ठीक है. नेक्स्ट वन, ऑब्वियसली व्हेन वी से दिस, सो दे डोंट हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन से होते रहे? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियाज, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज जनरली आर एब्सेंट. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट एक और लिख सकते हो, हाँ, सिर्फ क्या मिलेंगे तो राइबोसोम्स मिलते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट टू 70H type. Then they have cell wall present. Obviously, based on the nature of cell wall, these are further classified into three: Archaebacterias, Eubacterias, and mycoplasms, और जिन्हें हम PPLOs भी कहते हैं. So basically, cell wall is again over here an important aspect because further classification of kingdom Monera is based on that. So ये एक important चीज याद रखोगे. So these are the basic features that you find in what you can say the kingdom Monera organisms. Next, अगर हम इनके mode of nutrition की बात करें, mode of nutrition में MCQs के लिए ये सब याद रखना है. maximum members actually होते हैं heterotrophs. Basically, some are saprophytes, some are parasites. Rather, many of them are even disease-causing organisms. Typhoid का Salmonella typhi, tuberculosis का Mycobacterium tuberculosis, tetanus का Clostridium tetani.
सो ऐसे बहुत ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बहुत बैक्टीरियाज होते हैं विच कैन कॉज डिजीज. सो हेट्रोट्रॉफिक मोड में पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट्स दोनों आते हैं. इवन जो सभी डिकम्पोजर्स है सॉइल में, मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, बट सम ऑफ देम आर आल्सो फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफ्स आल्सो, मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. हम आगे देखेंगे जैसे यू बैक्टीरियाज में मोस्टली देखने को हमें मिलने वाला है. फोटो वाले तो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन अलगेस कहा करते थे, वो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं. कीमो ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जैसे हम क्लोरोबियम, क्रोमैटियम, ये कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल्स से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, बट बनाएंगे तो ग्लूकोज ही. सो वो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में. बट बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द members of kingdom Monera is basically heterotrophs, while few members are also photoautotrophs and chemoautotrophs. रही बात last is the reproduction. Obviously they mainly rely on asexual methods, खास करके binary fission and multiple fission. ठीक है, binary multiple fission ज्यादातर. Then इसके अलावा some might undergo budding and some might undergo spore formation also. Spore formation and sexual method है, rarely exhibit करते, but obviously है तो सही. Sexually अगर हम बात करें so conjugation method. ठीक है, so हम आगे जब हम फंगस वगैरह देखेंगे तब मैं शॉर्ट में ये conjugation कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा. So conjugation method of reproduction, sexual reproduction में तुम्हें देखने को मिलेगा. So these are the points to be remembered overall for the members of kingdom Monera. So these are the, इसमें एक short recap देखते हैं what कि kingdom Monera में कौन आते हैं, सभी बैक्टीरियाज आते हैं, सभी बैक्टीरियाज which are omnipresent, present in all possible harsh environments, conducive environments, all environments. Basically majority are prokaryotic and unicellular. तो प्रोकैरियोटिक से आगे आता है कि they don't have a definite nucleus, no nuclear membrane surrounding it, no membrane bound organelles except for few like ribosomes. Even ribosomes don't have any membrane, remember that, ये MCQ आता है. और इनमें जो होते हैं वो 70S टाइप के है. S stands for sediment Swedberg unit which represents the sedimentation rate, and they have a typical cell wall. Now based on cell wall there are of three types जो अभी हम लोग देखने वाले हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिशन में मैंने बताया मैक्सिमम ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफिक्स, फ्यू ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स आल्सो, फोटो एंड कीमो बोथ. रिप्रोडक्शन में बताया द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज asexual मेथड व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, मे बी फिशन, मे बी बडिंग, मे बी स्पोर फॉर्मेशन, बट सेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बेसिकली बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब. ठीक है, सो कॉन्जुगेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ kingdom Monera. Now let's look at the three members of this category. So the types, or rather you can say the Monera kingdom can be divided into three types of bacteria based on their cell wall. एक एक सेंटर में लिख रहा हूं मैं. First obviously is the archaebacteria. अब आरके का मतलब ही होता है पुराने जमाने वाले, सबसे प्रिमिटिव, सबसे ओल्ड बैक्टीरिया. ठीक है, सो आरके बैक्टीरिया. अब ये किस पे से डिसाइडेड होता है, बिकॉज ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. ठीक है, केमिकली इनका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड वेरियस प्रोटीन्स. ऑब्वियसली ये पेप्टिडोग्लाइकेन और वैसे तो है नहीं. ठीक है, प्लस प्रोटीन्स का अलग कॉम्बिनेशन है. केमिकल कंपोजिशन में दे आर एक्चुअली फ्यूजन ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स, बट नॉट पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन और म्यूरिक एसिड. सो इसलिए कंपोजिशन वाइज अलग है, इसलिए हम इन्हें आरके बैक्टीरियाज में डालते हैं. दूसरी बात, the thing to remember in this case is they are called as extremophils because simply these bacteria हम इन्हें extremophils कहते हैं because they can survive in harsh environments. ठीक है, they can survive in harsh environments.
ठीक है। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स है हैलोफिल्स, ठीक है। हैलोफिल्स वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है दैट कैन सर्वाइव इन सलाइनिटी और खारे पानी में, जैसे अपन बोलते हैं saline water. So halophils which survive in saline water, that is salty water oceans में, या एकदम डेड सी जैसे अगर हम बोलते हैं जिसकी सैलिनिटी बड़ी हाई है, ऐसी जगह में भी तुम्हें कुछ माइक्रोब्स मिल जाते हैं जो इसमें हम आर्के बैक्टीरियाज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज थर्मो एसिडोफिल्स। Now these are the ones who can bear extreme heat plus some toxic condition, मतलब जैसे सल्फर कंटेनिंग गैसेस वाले रीजन में, जैसे वोल्केनिक साइट्स में होता है सल्फर गैस या सल्फर जैसे H2S जैसे पॉइजनस गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह में, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, बिकॉज दीज आर एसिडिक गैसेस, उनमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। देन हॉट स्प्रिंग्स, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, उसके आसपास कहीं ना कहीं गर्म पानी के सोते मिलते हैं, बॉइलिंग वाटर मिलता है। In that extreme condition also these can survive. So they can survive in high temperatures. They can survive in high temperatures and even some acidic conditions. ठीक है, and toxic chemicals के बीच में acidic conditions भी तुम उसमें पकड़ सकते हो। So they can survive in high temperatures and acidic conditions, इसलिए उन्हें thermoacidophils। और एक है मिथानोजेंस। अब दीज आर जनरली एनारोब्स, ठीक है, एंड दीज आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, ठीक है, दीज आर मीथेन प्रोड्यूसिंग। सो किसी डेड एंड डिकेइंग पे ये ग्रो करते हुए मिलेंगे, उसको डिकम्पोज करके मीथेन बना सकते हैं। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज जनरली नहीं कहते हैं, जनरली दे आर आल्सो फाउंड इन रूमिनेंट्स, काउज, बफेलोज में। सो दे प्रोड्यूस गैसेस, तो उसमें इवन वी प्रोड्यूस गैसेस, अपने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, खास करके सीकम में फ्रेंडली गट बैक्टीरियाज मिलते हैं, इवन दे डिकम्पोज एंड दे प्रोड्यूस दीज गैसेस, ठीक है, बट दे आर नॉट दीज वंस, ठीक है। तो बट जस्ट एग्जांपल, या सो दे आर फाउंड इन रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज आल्सो। सो हियर यू कैन सी दीज बैक्टीरियाज आर मेनली डिजाइन, अगेन दीज आर प्रोकैरियोटिक, इनका सेल वॉल कंपोजिशन के कारण इन्हें अलग किया गया है, and they are known as extremophils because they can bear this harsh environments, ठीक है। तो सबको आर्के बैक्टीरियाज होपफुली समझे होंगे, तो मिथानोकोकस वगैरह वगैरह, सल्फर बैक्टीरियाज, थायो जिसे अपन थायोबैसिलस बोलते हैं, फेरोबैसिलस है, आयरन बैक्टीरियाज। सो ये सब जो आते हैं ये आर्के बैक्टीरियाज के अंदर एग्जांपल्स में तुम लोग इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। सो आर्के बैक्टीरियाज होप सो सबको क्लियर है। You can take a pic of this, you can write it as a notes in your books, ठीक है, hope so ले लिया होगा। नेक्स्ट जो है वो है यू बैक्टीरियाज। ऑब्वियसली यू कैन से दीज आर मॉडर्न बैक्टीरियाज, ये आर्के मतलब प्रिमिटिव, एकदम पुराने जमाने वाले जैसे अपन बोलते हैं। सो यू बैक्टीरियाज, ठीक है, और यू कैन कॉल देम एज प्रॉपर सेंस में मॉडर्न बैक्टीरियाज, ठीक है। नाउ सिंपल, इनको क्यों डिस्टिंग्विश किया गया है, बिकॉज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जो हम जानते हैं सेल चैप्टर में हम देखेंगे आगे भी, पेप्टिडोग्लाइकेन, देन म्यूरिन, म्यूरामिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, जनरली ये उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। तो यू बैक्टीरियाज में मोस्टली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दिस एंड हेंस इन्हें हम सेपरेटली कैटेगराइज करते हैं। ऑब्वियसली ये भी टिपिकल प्रोकैरियोट्स है, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, सिलेक्टेड ऑर्गेनेलीज, वो है, वो तो ये है इसमें। अब इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं वो होते हैं साइनोबैक्टीरियाज, जिन्हें हम पहले ब्लू ग्रीन अल्गेज भी बोलते थे, ठीक है। सो जनरली दीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज इसमें आते हैं, जैसे कि एग्जांपल बुक में भी दिया है, दैट इज ऑफ नॉस्टॉक, ठीक है। सो नॉस्टॉक अगर हम बात करते हैं, विच इज अ ब्लू ग्रीन अलगे, जो कि एक फिलामेंटस अलगे है, तो तुम देख रहे हो ये जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल हम इन्हें सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल
कहते हैं विच आर जनरली ग्रीन, एंड ग्रीन बोला मतलब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, सो दीज आर फोटोऑटोट्रॉफ्स। सो बेसिकली ये जो जितने सेल्स दिख रहे हैं वो ये हैं, इनके ऊपर ऑब्वियसली एक म्यूसिलिजिनस शीट होती है ऑब्वियसली फॉर प्रोटेक्शन, सो म्यूसिलेज से बनी हुई एक शीट, प्रोटेक्टिव कवरिंग, सो इसे तुम बोल सकते हो म्यू, थोड़ा इसमें बीच में आ जाएगा, या लिख देता हूँ म्यूसिलिजिनस शीट, ऑब्वियसली फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, एंड ये सबसे मेन है, दैट इज हेटेरोसिस्ट्स। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ द सेल्स आर, जिन्हें हम सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, रेगुलर सेल्स, एंड दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, mucilage to prevent it from the external environment, and सबसे मेन हेटेरोसिस्ट। नाउ इनमें हेटेरोसिस्ट एक इंपॉर्टेंट सेल है बिकॉज ऑब्वियसली दे कंटेन नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है एंड ऑब्वियसली दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into nitrates and nitrites and make it available for the plants। इसलिए इनका इस्तेमाल नॉस्टॉक, एनाबीना, ये कुछ है, अजोस्पिरुलम वगैरह, ऐसे तुम्हें ब्लू ग्रीन अलगेस मिलते हैं। खास करके नॉस्टॉक एंड एनाबीना का इस्तेमाल हम पैडी फील्ड्स में करते हैं, राइस फील्ड्स में, बिकॉज वो वाटर लॉक्ड होता है। ये बैक्टीरिया अगर हम वहां छोड़ दें या उन्हें ग्रो करें तो जनरली दे नेचुरली फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड इसलिए नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल बढ़ा देगा जिससे यील्ड बढ़ता है। सो वी नीड नॉट हैव टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये नेचुरल बायो फर्टिलाइजर्स की तरह हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन अगर हम देखें, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस हेटेरोसिस्ट आल्सो एड इन रिप्रोडक्शन, सो दे हेल्प टू रिप्रोड्यूस आल्सो, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे। सो दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ दिस हेटेरोसिस्ट, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सो जनरली व्हेन वी स्पीक यू बैक्टीरियाज, इसमें हमें दो टाइप के मिलते हैं, एक जैसे फोटो हीमोऑटोट्रॉफ्स, तो साइनोबैक्टीरियाज दे कम अंडर फोटोऑटोट्रॉफ्स। हीमोऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हीमोऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लोरोबियम मतलब ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज, क्रोमैटियम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल के मिनरल्स, कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो अपना क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस करेंगे, कीमोऑटोट्रॉफ्स। सो ये सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दैट है, एंड मैंने जैसे बताया था मैक्सिमम ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स, maximum them are acting like decomposers, so they help to decompose the dead and decaying material. Majority of them are parasites, as I told already, like disease causing parasites, tuberculosis, mycobacterium tuberculei, lepre, mycobacterium lepre, इसके अलावा टाइफाइड भी बताया था, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम टिटानिस और टिटानस, सो ऐसे करके बहुत सारे, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरे, ये मिलते हैं। सो दीज आर दीज यू बैक्टीरियाज, ठीक है। सो ये उनके कुछ एग्जांपल्स है विच यू नीड टू लर्न, तो ये तुम लोग लिख सकते हो, विच आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द यू बैक्टीरियाज। लास्ट वाले, ये कम से कम 2 बार अब तक नीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, दैट इज माइकोप्लाज्म्स। 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनमें, माइकोप्लाज्म्स, और इन्हें हम लोग पीपीएलओज बोलते हैं, प्लूरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लूरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, दे डोंट हैव एनी सेल वॉल, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो आरके में सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन अलग है, यू बैक्टीरियाज में वो पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन है, इनमें है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, these are the smallest, ये MCQ में पूछा गया था, smallest living forms found on the earth, these are the smallest living forms, and सबसे important, these are
obligate means compulsorily. These are parasites, so these are all disease causing microbes. so mycoplasms जो होते हैं इनकी यही तीन खूबी याद रखनी, तीन ही खूबियां है, सेल वॉल नहीं होता, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो पाए जाते हैं, एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. तो होप सो मोनेरा, किंगडम मोनेरा सबको क्लियर है. सो दिस इज ऑल विथ किंगडम मोनेरा. सो हम अभी मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है. सो गाइज, hit the like button, subscribe the channel, share it with your friends. Thank you.